we'll continue working on the softwares. So हमने last time हमने Xscheme में कुछ बेसिक कमांड्स रन की थी, ठीक है. बेसिक सर्किट आरसी बना के और उस पर हमने ट्रांजिएंट और डीसी सिमुलेशन करके देखी थी. अच्छा, नाउ so you should have Xscheme installed, or you should also have SkyWater PDK installed with it. So if you want to use SkyWater with Xscheme, one way is to use OpenPDKs. ठीक है, OpenPDKs का जो configuration है, that is available on opencircuitdesign.com. But the requirement is that you should have all the tools installed before configuring or installing the SkyWater PDK. If you install a tool after you configure SkyWater or OpenPDKs, then it will not link. So then you have, after the installation, you have to rerun the configuration again. So the second चीज़ ये है कि then you have to correctly link the path, और उस path में आप मॉडल्स जो हैं वो लिंक कर सकते हैं. ऑटोमेटिकली गालबन ये नहीं कर रहा था. फॉर एग्जांपल अगर ये मैं टीटी मॉडल्स में एक इफ यू लुक एट दिस, सो if I go inside TT model, so and I on the right hand side I only edit the value, ठीक है. बाकी कुछ चीजें हैं लेकिन we are not interested. तो ये जो .lib है, it is telling .lib is basically helping you to add a library, and this variable SkyWater models ये आपकी Xscheme RC file के अंदर defined है. When you set up the Xscheme RC, so it should link to the place where OpenPDKs has created all the libraries, ठीक है. और वो कहाँ पे करता है, वो जब आप OpenPDKs को या SkyWater OpenPDKs को configure करेंगे. I could open it. बनाना yeah, exactly, and this one. So if I go inside, तो इसमें आप ये जो आप रन करें ना OpenPDKs में, this command dot configure. So here first of all you will install OpenPDK, SkyWater, जो कि ऊपर आपके पास commands हैं. You will create a directory SkyWater PDK using this git clone command. Then you initiate the libraries latest, ठीक है. और अपडेट करने के बाद आप इसको make और make timing कर देते हैं. Make timing is not necessary for this course, but it's good to have it. अच्छा, then ये पाथ आपका आ जाएगा, ठीक है. होम पे अगर आप हैं तो होम पे SkyWater is the main library. I could show it. So you see कि यहाँ पे मेरे पास SkyWater PDK की ये डायरेक्टरी मौजूद है, ठीक है. अच्छा, now when you run OpenPDKs here, तो आप एक ऑप्शन देंगे ये वाला, enable Sky130 PDK and equal to the path, ठीक है. और ये लाइब्रेरीज नहीं होना चाहिए इधर, ठीक है. इसने किया हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि you should give the path to the home or the folder where the SkyWater all the content is installed. तो ये लाइब्रेरीज के बगैर आप करेंगे. और सेकेंडली जहाँ पे आप OpenPDKs जो कन्वर्ट कर रहा है SkyWater को फॉर डिफरेंट टूल्स, तो इधर आप वो पाथ दे देंगे, ये वाला जो है विद Sky130 लोकल पाथ इज इक्वल टू जो भी आप पाथ यहाँ पे देंगे इधर, ये वाला OpenPDK जो लिखा है, तो इधर वो इंस्टॉल कर देगा, ठीक है. और डिफॉल्ट जो है वो USR शेयर PDK है, ठीक है. So if I ये लिखे ही ना अगर ये exactly, अगर ना भी लिखे तो वो डिफॉल्ट में कर देगा, ठीक है. So we should know कि it should be in CD USR share PDK
और फिर sky 130A and if I look inside it, so आपके libs.tech है, cd libs.tech, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास मेरे लिए मैजिक के लिए, ng spice के लिए, x scheme के लिए कंटेंट मौजूद है। इफ आई लुक इनसाइड ng spice, so you see these technology files are present. So secondly what you have is कि जहाँ पे आपने x scheme को इंस्टॉल किया है, बल्कि let me see this, so if I cd x scheme, तो यहाँ पे आपकी एक फाइल है x scheme rc, ठीक है। if you want to run x scheme from another folder जहाँ पे आप लेट्स से अपने तमाम डिज़ाइन सेव करना चाह रहे हैं, जिस तरह मैंने किया हुआ है, I have it जी, मैंने फॉर एग्जांपल एक वर्क का फोल्डर बनाया है होम में, उसके आगे कोर्स का नाम है और आगे फिर लेआउट के लिए अलग मैंने फोल्डर बनाया, सब फोल्डर, और स्कीमेटिक के लिए अलग बनाया है। तो इफ यू वांट टू रन एक्स स्कीम फ्रॉम दिस फोल्डर, हाँ जी, आई डोंट थिंक कोई है। हमजा एंड एमन आर बोथ, maybe you disconnect, both are there. अच्छा, so अगर आप इसको कहीं और से रन करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लेट मी, और मैं सपोज वर्क ECE and schematic, तो if I look inside, मैंने यहाँ पे ये x scheme rc फाइल ऑलरेडी कॉपी की हुई है। आप कैसे, कहाँ से करेंगे? इट शुड बी फ्रॉम विद इन द डायरेक्टरी जहाँ पे आपने ओपन PDKs के थ्रू अपनी तमाम सॉफ्टवेयर्स की टेक्नोलॉजी फाइल्स डाउनलोड की हैं, वो एक्स स्कीम की यहाँ पे कर देंगे, तो वो फिर इधर से भी जब आप रन करेंगे तो मॉडल एक्सेसिबल होंगे। अच्छा, इसमें फिर आई वाज सेइंग कि यू हैव टू सी के ये जो हमने एक्स स्कीम में देखा है, ये मैं आपको दिखा रहा था। सो दिस पाथ स्काई वाटर अंडरस्कोर मॉडल्स, ये जो वेरिएबल है, इट इज डिफाइंड इनसाइड एक्स स्कीम आरसी फाइल, ठीक है, और इट शुड पॉइंट टू द करेक्ट, लेट मी शो यू क्या मैं क्या कह रहा हूँ। इफ आई ओपन nano x scheme rc, so nano x scheme rc, so at the end you see these two variables are defined, set skywater models and set skywater standard cells. ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये USR share PTK sky 130 libs.tech and ng spice, इसके अंदर आपके पास ये फाइल मौजूद है जो कि एक्स स्कीम में मैंने इधर ये वाली जो है, ठीक है। सो ये sky 130.lib.spice, और उसमें फिर मल्टीपल आपके मॉडल्स हैं। TT मींस टिपिकल, सो यू कुड हैव मल्टीपल प्रोसेस कॉर्नर्स, कि आप एक जब चिप बनाते हैं तो उसमें द रिस्पांस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। सो एक टिपिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके अलावा आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। सो यू कुड हैव टिपिकल फास्ट स्लो, ठीक है। सो जनरली आपके पास जो मेजॉरिटी है चिप्स हैं वो टिपिकल पे बनती हैं, लेकिन अगर आपने अपने डिज़ाइन को देखना है कि वो प्रोसेस कॉर्नर्स पे भी परफॉर्मेंस ठीक दे रहा है, तो आप उसको स्लो या फास्ट पे रन करके देख सकते हैं, लेकिन एवरेज परफॉर्मेंस इसी से आएगी। सो यहाँ पे हम जब डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हम नॉर्मली टिपिकल से सिमुलेट करके देखेंगे, लेकिन वर्स्ट केस आप कॉर्नर्स पे भी, प्रोसेस के कॉर्नर्स पे भी सिमुलेशन करके देख सकते हैं। तो हर किसी के लिए अलग-अलग कमांड्स हैं, हर ऑपरेशन के लिए फिर अलग-अलग कमांड्स हैं इधर इसके अंदर इस सॉफ्टवेयर में, फिर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। फॉर एग्जांपल लाइक दैट अगर हम लोग डीसी एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए अलग वैल्यू होगी,
आई कैन ओपन अ सर्किट एंड देन यू कैन आस्क स्पेसिफिकली कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो आपकी एक्स की मार्सी है उसमें उसने पाथ दे दिया है, लेकिन इफ यू वांट टू इंक्लूड अ स्पेसिफिक सेट ऑफ लाइब्रेरीज, टिपिकल है और आप लेट्स से फास्ट करना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू इंक्लूड दैट। लेट्स से अगर आपने कोई ट्रांसफर यूज किया जो कि टिपिकल में नहीं है, तो आप उसको ये कौन सा लाइब्रेरीज, ये टिपिकल और फास्ट एंड फास्ट, ये किधर पड़ी है? ये इसी के अंदर पड़ी हैं, ठीक है। ये जो आपकी जो डॉट स्पाइस में आपके पास मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, ठीक है। सो करेंटली डेफिनेशन यूज करनी है या फाइल भी चेंज करनी है, फाइल पाथ नहीं, पाथ तो सेम रहेगा, सिर्फ फाइल नेम आई थिंक सेम, और आगे आपने एफएफ कर देना है अगर फास्ट करना है। अच्छा, नाउ सो लास्ट टाइम हमने नॉर्मल आरसी सर्किट के लिए एनालिसिस करके देखा था। आज मैंने ऑलरेडी सर्किट बनाया है, बट इफ यू वांट आई कुड कंस्ट्रक्ट इट फ्रॉम स्क्रैच एंड ये जो बनाया है उसको हम देख लेते हैं। सिमुलेशन है, एक आपकी डीसी सिमुलेशन है। आई कुड ओपन रीसेंट एंड VTC, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स लिया है, ठीक है, और ये मैंने दो डिवाइसेस ली हैं। ये कहाँ से ली हैं? आई वुड प्रेस शिफ्ट आई एंड देन ये आपकी जो है, ठीक है, ये कौन सा पाथ है? ये वही है USR शेयर। आई कुड मैक्सिमाइज इट टू शो, ठीक है। ये आपकी जो जिस डायरेक्टरी में OpenPDK ने इंस्टॉल की थी, शुएब साहब की कॉल आई थी, वो कह थे कि टीचर से कहें कि हमारे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, कोऑर्डिनेटर बन तो क्लास आगे पीछे कर दें 6:30 से 7 तक बंद करेंगे आप? चलो ठीक है, 6:30 से 7 जनरेटर बंद होगा। ठीक। डेली आ जाए नहीं यहाँ पे आपके पास इसके अंदर आपकी ये जो FTPR है, इसके अंदर आप सिंबल्स उठा सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने इधर से NFET 01V8 उठाया है, ठीक है, ठीक है। 1.8 वोल्ट वाला ट्रांजिस्टर है, ये 3.3 वाला भी है, 5 वाला भी है, और मे बी ये 20 वाला भी है। बट हम ये स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर लेके LVT इज आई थिंक लो थ्रेशोल्ड वोल्टेज वाला है, ठीक है। बट ये कुछ चेक की टेक्नोलॉजी की डिटेल्स आप Sky 130 के पेज पे देख सकते हैं कि ये किस स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर को रेफर कर रही हैं। हम स्टैंडर्ड अभी यूज़ कर रहे हैं। सो मैंने एक ये पिक किया जी, NFET_01V8, और दूसरा PFET_01V8, ठीक है। ये PFET है और ये NFET है। फिर मैंने इनको एज रिक्वायर्ड फॉर इन्वर्टर मैंने कनेक्ट करके और ये नोड्स को नाम दे दिए VIN और Vout, ठीक है। So then I have created a spice deck to basically control the simulation I want basically to sweep VIN from 0 to 1.8 volt and see के output voltage कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। तो उसमें मैंने ये कुछ कमांड लिखी हैं, कुछ नहीं चल रही, कुछ चल रही हैं, बट एनीवेज इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं वो रख लेता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। सो एंड कंट्रोल को भी ख़त्म करके, सो द ओनली कमांड आई एम यूजिंग इज दिस, ठीक है, .dc v1 0 to 1.8 with a step size of 0.01. And secondly, I think it doesn't save the voltages automatically. So what you could do is .save V of V and .save V of V out, और इसको ओके कर लें, ठीक है। इसको भी अगर आप वैल्यू करेंगे तो सिंपली वैल्यू आ जाएगी। ओके करके आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अच्छा, इसमें आप अब क्या कह रहे थे? आप पूछें कि
तो मैं ये कहता हूँ कि सर हाँ जो भी हम लोग सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे तो हर किसी के लिए सर अलग अलग कमांड्स होंगे, लाइक अभी सर आपने डीसी का बताया था ये सब कुछ, तो लास्ट में फिर हम टीटी करेंगे, टीएफ करेंगे, तो नहीं वो तो सिर्फ उसने ना जो इसके मॉडल उठाने हैं वो टीटी उठाए हैं, ठीक है। वो आप फिलहाल समझिए आपने एक ही काम करना है, कुछ और नहीं करना है। व्हेन वी डू द कोरोना सिमुलेशन तो उस पर हम दोबारा आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपने एक यहाँ पे शिफ्ट आई करके और इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड द Sky 130 library you could go into Xscheme की लाइब्रेरी ये रही, ठीक है। डिवाइसेस में जाएंगे, ठीक है। एंड ये आप इधर भी Sky 130 की लाइब्रेरी में नहीं बल्कि Xscheme की अपनी लाइब्रेरी में गए हैं। डिवाइसेस में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज सोर्स भी है, ठीक है, करंट सोर्सेज भी हैं, या कोड वाली जो पार्ट है ना, ठीक है, कोड शोन और एक कोड है, ठीक है। जो मैंने टीटी मॉडल्स किया है, ये आप क्या करेंगे, यहाँ से कोड उठा के या कोड शोन उठाने की बात है, और ये क्यों नहीं उठाना, ठीक है, यहाँ पे डाल के, ठीक है, और उसके बाद क्यों करेंगे और उसके अंदर इसको वैल्यू कर लें, ठीक है। ये जो इसमें बुला लिखे इससे क्या रिस्पॉन्स आएगा? ये कुछ भी नहीं एरर दे देगा कि इट डजंट रिकॉग्नाइज। यहाँ पे आप फिर एग्जैक्टली वही कमांड जो मैंने आपको दिखाई है, आई कुड शेयर इट एज वेल, ये जो अंदर लिखी है ये आप सिंपली इसको वैल्यू, ये आप अगेन इसमें सिर्फ हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। और सर जो डबल स्टैटिक होते हैं वो कमेंट के लिए यूज होते हैं, जो होते हैं डबल स्टैटिक यूज होते हैं, सिर्फ स्टैटिक जो है ना कमेंट के लिए है। पहली लाइन कोड शो में हर दफा ये पाथ इसमें पेस्ट करना पड़ेगा नहीं, ये तो स्पेसिफिक जो आपकी स्पाइस फाइल है ना, वो पाथ उसने दिया है, वो तो पाथ है ना, ठीक है। तो डिफॉल्ट में लाइन ऐड नहीं आती बीच में, नहीं आती, ठीक है, क्योंकि देखिए वो ये कर रहा है जो आपकी एक्सकीम आरसी में वो डेफिनेशन सिर्फ वेरिएबल की है जो कि पाथ की है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू इंक्लूड अ लाइब्रेरी देन यू हैव टू यूज डॉट लिब और डॉट इंक्लूड, दोनों आई थिंक यूज हो सकती हैं, ठीक है। वेरिएबल डिफाइंड है तो आप उसको वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली पाथ भी लिखते हैं, ठीक है, इट वुड वर्क। अगर मैं यहाँ पे इस चीज के बजाय USR share PTK Sky 138 libs.tech/ngspice/ ये करूँ तो ये पर्पस क्या है कि हमने इसको पाथ बताना है कि ये जो आपकी सिमुलेशन मॉडल्स हैं वो किस फाइल में पड़े हैं, तो ये इस .spice फाइल में पड़े हैं, ठीक है। sky130.lib.spice एक फाइल है, we could check it if you want, so I could ठीक है, इसको मैं Ctrl X करता हूँ, ठीक है। ये तो इधर पड़ी है Xscheme, ये मैजिक है, ठीक है। Xscheme से निकल और मैं ngspice में आके explorer.exe डॉट एक्सप्लोरर, तो ये विंडोज में खोल देगा, ठीक है। यहाँ पे आप आके ये जो फाइल है इसको आप विद अ टेक्स्ट नोटपैड आप ओपन विद और नोटपैड ऑलवेज रिस्ट्रिक्ट ना करें, सो यू कुड सी के पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये टीटी की डेफिनेशन है, टिपिकल कॉर्नर, ठीक है। आपका काम ये नहीं है कि वो क्या है पीछे बैकएंड पे क्या हो रहा है, आपको सिर्फ वो ऐड करनी है और देन तो ये आपने एक्चुअली मॉडल्स की इंफॉर्मेशन आपने सम ऑफ स्पाइस को बताया कि यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। सो ये जो आपकी डेफिनेशंस हैं जो आपने एक लेट्स से पर्टिकुलर मॉडल नेम भी यूज़ किया है,
वो डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये फाइल नहीं आप इंक्लूड करेंगे लाइब्रेरी में तो आपको एरर आएगा कि ये डिवाइस डज नॉट एग्जिस्ट। सो अब अगर आपने इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की सिमुलेशन रन करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए पर्टिकुलर आउटपुट क्या आएगी फॉर डीसी, ठीक है। सो आप .op से वो चीज़ कर सकते हैं। सेकेंडली अगर आप डीसी को स्वीप दे के जिस तरह वोल्टेज ट्रांसफर कर्व है वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आपको फिर डीसी सिमुलेशन रन करनी पड़ेगी जो कि ये है, ठीक है। तो इसको आप एक और काम कर सकते हैं कि वी कुड आल्सो जनरेट दी IV कर्व्स, वी कुड आल्सो जनरेट दी IV कर्व ऑफ द NMOS। सो वो आई थिंक मैंने अलग बनाई है, उसके लिए आपको नेस्टेड स्वीप यूज करना पड़ेगी। सी बिकॉज आप जो IV कर्व है दैट इज फॉर अ that is the drain current of the MOSFET versus the drain to source voltage of the MOSFET, but that IV curve would depend upon what is the value of VGS. So for one value of VGS you could sweep VDS, ठीक है। तो एक sweep आप किस तरह की होगी .dc, whatever the name of the voltage source at drain is 0 to 1.8.01 or that should be for a given value of VGS, ठीक है, या source that you have at the input. And if you want to sweep it, let me see कि अगर मेरे पास open है, open recent NMOS IV, ठीक है, ये मैंने अलग बनाया था, ठीक है। So I save it, let's say. So now here you have to देखिए यहाँ पे मैंने ये NFET लगाया है, ठीक है। इनपुट पे V1 सोर्स है, इसकी वैल्यू DC3 है, ठीक है। और ये this should be basically 1.8। एनीवेज मैं चेंज कर रहा हूँ तो इट डजंट मैटर। अगर डीसी सिमुलेशन रन होगी तो उसमें इसकी वैल्यू होगी, ये 3 भी हो तो इट वोंट मैटर। अच्छा ये तो मैंने इसकी वैल्यूज दे दी हैं, फिर मैं स्वीप कर रहा हूँ इन वोल्टेजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे जो .dc है ये V2 को स्वीप करेगा जो कि ड्रेन वोल्टेज है फ्रॉम 0 to 1.8 विद स्टेप value of 0.01 and then this sweep would be run for every value of this sweep. So nested sweeps हैं, ये लूप पूरा कंप्लीट होगा exactly, फिर दूसरा स्टेप आएगा exactly। So पहले V1 की वैल्यू 0 होगी, उसके लिए स्वीप पूरी रन होगी, फिर इसकी 0.6 पे रन होगी, फिर 1.2 पे रन होगी और फिर 1.8 पे रन होगी। तो we will get basically 4 IV curves। अच्छा फिर इसमें सेव ऑल शायद काम कर रही है नहीं कर रही है, ये असली गड़बड़ बाज़ दफा कर रही है ना। सो लेट्स सी कि व्हाट वुड इट डू। सो आई हैव दिस, ये जो कमांड है ना जी, .save @m.xm1.pr_nfet_01v8 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में ID। So this is to save the drain device, ठीक है। अच्छा ये जो है एक्चुअली ये जो आपका नाम यहाँ पे लिखे nfet_01v8 ये शायद मॉडल का नाम है, ठीक है। लेकिन जो आपकी डिवाइस है उसका नाम ये पूरे का पूरा है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा? और यू नो दिस, you when you create the netlist, ठीक है, if I create the netlist you would see inside the netlist you would see के, ठीक है, ये आपका ट्रांजिस्टर का नाम है, ठीक है। और इसको उसने एक सब सर्किट बनाया हुआ है गालिबन XM1, ठीक है। सो जो पहला मे बी डोंट नीड टू कंप्लीट अंडरस्टैंड इट, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन कि क्या है। इसमें पहला जो M है ये बता रहा है कि ये MOSFET है, ठीक है। XM1 इसकी सिंबल का नाम है और सिंबल के अंदर आपके पास एक और MOSFET है MSky130, ठीक है। तो ये जो पहला M है ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपके पास ये डिवाइस जो है वो MOSFET है। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई वोल्टेज सोर्स होता तो इसको V से स्टार्ट हो रहा होता, ठीक है। अगर रेजिस्टर है तो R से स्टार्ट हो रहा होता, और अगर कैपेसिटर है तो C से एंड सो ऑन, ठीक है। और बाय द वे ये आपको नाम उधर से आप कॉपी करके और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप अगर ID लिखेंगे तो इसको ये आपका ड्रेन करंट सेव करेगा और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको
प्लॉट कर रहा हूँ प्लॉट और फिर आप क्या कर रहे हैं राइट एंड मॉस अंडरस्कोर आईवी डॉट रॉ। तो ये रॉ फाइल जो है वो जितने भी वेरिएबल्स आपने सेव किए हैं वो उसको एक रॉ फाइल में सेव कर देगा, ठीक है, इसको एक नाम दे देगा, ठीक है, अदरवाइज शायद ये नहीं कर रहा होता। तो अभी वी शुड एक्सपेक्ट इज टू हैव अ IV curve of this MOSFET और 4 वैल्यूज ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। ये जो 1.8 है ये अगर डीसी एनालिसिस परफॉर्म हो रहा होता तो वो क्या करता कि उसमें ये 1.8 वैल्यू यूज करता, लेकिन क्योंकि हम डीसी स्वीप करें तो ये ओवरराइड हो जाएगी इससे, ठीक है। You could even run multiple simulations, ठीक है, you could even run a transient simulation in parallel, तो वो उस transient simulation के लिए again you need a DC value, तो वो DC value ये होगी। या इधर अगर आप AC simulation run करें जो कि frequency response के लिए, तो उसमें भी again you would need a DC value, तो वो ये वाली value use होगी। यहाँ पे आप DC sweep कर रहे हैं तो this value is basically overridden. So I could first of all I created the net list. Then I would simulate and I'll wait जब तक यहाँ पे मुझे ngSpice की prompt ना आ जाए। I keep waiting. और ये probably नहीं देगा आपको plot नहीं देगा। Let's see. ये तो सर्किट इतने छोटे-छोटे हैं, थोड़ा बड़ा डिजाइन नहीं ये असल में पार्सिंग पे टाइम ले रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी फाइल्स की डिटेल बहुत ज्यादा है ना। सर्किट सिमुलेशन आई डोंट थिंक इतना टाइम लेती है। अच्छा एक तो ये भी हम इनिशियल टाइम में सबके लिए एक ही हो, उसके बाद फिर कंपोनेंट अलग से जी जी वो ऑफ कोर्स इट वुड चेंज बट ज्यादा नहीं चेंज। इट डिपेंड्स कि आपने एक्यूरेसी कितनी, अभी मैंने 0.01 दिया है, इसको अगर मैं 0.0001 कर दूं तो और इट वुड इंक्रीज बाय 10 टाइम्स। वैसे भी शायद ये इतना ऑप्टिमाइज्ड टूल नहीं है ngSpice, मे बी इफ यू यूज LTSpice तो वो क्विक होगा। इधर वो बहुत तेज है LTSpice। अच्छा एटलीस्ट आपको इस तरह की सिमुलेशन रन करके कैरेक्टराइज करना आना चाहिए अपनी डिवाइस को कि let's say कि even if you instead of typing ID, let's say if you're doing analog design और amplifier बना रहे हैं तो उसमें small signal parameter भी calculate करके देता है, ठीक है, GM दे देगा आपको। even I think you could compute the capacitances, let's see कि वो सर LTSpice में क्या इशू आता है, इसमें चीजें कैसे हमारे पास LTSpice में Sky 130 नहीं है, उसकी लाइब्रेरीज नहीं है, अदरवाइज सर वो बहुत अच्छा रहते हैं। उस पर बहुत कम्युनिटी है उसकी, काफी लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें कम है। ऐसे काम है अगर हम सर्विस सिमुलेशन और कर्व्स की हद तक LTSpice ही यूज करें और जब फैब के लिए कुछ करना हो तो आपने जब डिजाइन ऑप्टिमाइज करना है तो फिर आपको टेक्नोलॉजी फाइल्स चाहिए ना, LTSpice में मौजूद ही नहीं है तो इसलिए। अच्छा सर जो इंटरचेंजेबली इसकी फाइल्स LTSpice की एक्सटेंशन है कि या कंपैटिबल? आई थिंक ओवरऑल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मेट में फर्क हो सकता है तो मैं भी उसको मॉडिफाई करना पड़े। लेकिन ये सर जो मॉडल मैथड है उसके अंदर तो उसके अंदर ये था एंड डॉट से ये तब तक फिट और ये जो है लाइब्रेरी वगैरह तो डॉट इस तरह के मॉडल का। और कुछ मैंने कहा ना कि कुछ कमांड्स में मसला हो सकता है, तो वो एज इट इज मोस्ट लाइकली नहीं चलेगी, आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं हो रहा अभी तक, नेटवर्क टेक हुआ है। अच्छा सेव ऑल से भी ना एक इसने कर लिया, ठीक है, अब इसने ये एरर इस पे दिया है, ठीक है। अच्छा नाउ आई कुड प्लॉट, इसने प्लॉट नहीं किया ना, इफ आई रन वेव्स हियर तो
ये भी गड़बड़ा है, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज आई कैन रीराइट राइट nmos_iv.draw, ठीक है। और लेट मी सी कि इफ गॉ कैन, अब इसने उठा लिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये रहा आपका आईडी, ठीक है। इनफैक्ट उसने डबल कर दिया है, ठीक है। सो नाउ आई कुड राइट क्लिक ऑन दिस and add this to selected. I have to select this, select किया, right click किया। अच्छा, ये तमाम के लिए आपको नहीं दिखा रहा, लेट्स सी, ये एक वैल्यू के लिए दिखा रहा है, 0 के लिए दिखा रहा है। So let's close this and type this command, plot at the rate of m dot xm1 dot m30 underscore e underscore pr 1 v 8 id. So right now you can see कि आपको उसने 3 0 I think 0.6 भी, क्योंकि आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज somehow close to 0.6 है, तो सेकंड का भी इसके ऊपर ही नजर आ रहा है, ठीक है। ये 1.2 के लिए, ये 1.8 के लिए है। अच्छा, if you want to write this data to a file, you could do that. You could do that by wr data, and then you write the name of the variable at the rate of m dot xm1 dot m sky130 underscore ft underscore pr underscore n fat 01v 8 and id. wr data too few arguments, dot txt. I could check here. ngSpice. Irkagi. I think यहाँ पे थी, ये मैन वाला, ठीक है। इधर wr data file and vectors too. You have to give the file name as well. So जी file name, let's say मैं कहता हूँ nmos underscore iv dot txt, all the variables you want to save, and then I can where is schematic, and nmos ये, ठीक है। I could, ठीक है, सी इसने probably तीनों ना अपेंड कर दिए, ठीक है। So 0 से 0.55, 0.6, 0.7, 0.8, 1.8 के बाद ये फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक देखें, इसने VGS 0 के लिए दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 6 के लिए है एंड सो ऑन। तो आखिर में आपके तमाम वेक्टर्स आ गए। इसको फिर आप मैटलैब में जाके कुछ प्लॉट करना चाहें, या ठीक है, कुछ भी प्रोसेसिंग करना चाहें तो
ऐसे बाकी जो टूल्स हैं एल्टी स्पाइस है, वहाँ पे आप मैनिपुलेशन विद इन दी स्कीमेटिक एडिटर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं है। लेकिन एनीवेज आई थिंक मैटलैब इज बेटर कि उधर आप वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स को इजीली मैनिपुलेट कर देंगे। एक ये है, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्ली इफ यू वांट टू रिड्यूस द सिमुलेशन टाइम, सो आप प्रॉब्ली ये कमांड रिमूव कर दें और ये दोनों भी रिमूव कर दें, क्योंकि वो सेव नेवरदलेस राइट नहीं कर रहा, और इसको ओके कर दें मे बी। सो आई क्लोज इट हियर। ये आपकी आईवी कर्व्स के लिए नेस्टेड स्वीप है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो हम अभी अच्छा एक चीज़ है, अगर एनजी स्पाइस हम इररिस्पेक्टिव कि एक्सकीम की आईडी ओपन है या नहीं है, एनजी स्पाइस का एग्जीक्यूटेबल जो है या वो खोले, उसका जो प्रॉम्प्ट आता है उस प्रॉम्प्ट पे ये हम स्पाइस कमांड्स लिखनी शुरू कर दें, जी यही रिस्पॉन्स होगा। मतलब इंटीग्रेशन अगर ना भी हो तो दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। आई थिंक यू आर राइट। आप यहाँ से बटन से ओपन कर रहे हैं तो वही विंडो खुल रही है ना, एनजी स्पाइस की जी। कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है काफी देर बाद जी तो कमांड अदरवाइज भी हम मैनुअली एंटर कर रहे हैं उसमें। हाँ एग्जैक्टली, वो काम अगेन वहाँ पे भी हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे रहते हुए ट्रांजिशन सिमुलेशन रन करूँ तो इट वुड अगेन हैज टू गो थ्रू दी आप कहने की सिमुलेशन में यहाँ पे रन ना करूँ बल्कि डायरेक्टली एनजी स्पाइस को उधर करूँ तो वो फिर उधर अगेन टाइम लेगा, ठीक है। लेकिन प्रोसेस बैकग्राउंड में उतना ही रन करेगा। जी आई वुड सजेस्ट कि आप ये ना ओपन रिसेंट, इसमें आप सेकंड जो है वो वोल्टेज ट्रांसफर कर्व को देख सकते हैं। इसमें भी मेरे पास आई नीड टू सेव वी इन एंड वी आउट, और इसमें अगेन आपके पास जो सिमुलेशन है वो डीसी सिमुलेशन है। V1 will be swept from 0 to 1.8, or if I run it, first of all I have to create netlist, then I need to simulate and wait. Again it would show you the IV curve, or ये डाटा प्रॉब्ली आप सेव करके जिस तरह हमने कहा था कि नॉइज मार्जिन्स वगैरह अगर फाइन करने तो वो मैनिपुलेशन आपको प्रॉब्ली मैटलैब में करनी पड़ेगी। आपके पास कर्व है वी इन वर्सेस वी आउट, और उस कर्व में आप फिर देखेंगे कि डेरिवेटिव कहाँ पे -1 हो रहा है। so, उस पॉइंट से आप वी इन का लो और वी इन का हाई फाइंड कर सकते हैं। और since you know VOH and VOL, so you could find the noise margins. ठीक है, if I look inside this file, so इसके अंदर आपके पास वही है, सिर्फ आपका एक कमांड है। Running. अब ये गालबन एक बंदा है जो कि इसकी डेवलपमेंट कर रहा है, कुछ और लोग भी होंगे लेकिन
हमारे घर में हमारा कोर्स वैसे ही पास वही इस इटालियन में बात करें। हम फिर चलें, फिर हम क्या करेंगे, we'll move on to another technology. वर्ष अच्छा है, इसने सोचा वर्ष सिनेरियो सेट कर अच्छा, मैंने एचओडी से बात की है और ही एग्रीड कि हम असाइनमेंट्स को और मिड्स को और फाइनल को कम्प्लीटली ऑनलाइन नहीं, कम्प्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड ले सकते हैं कि आपको डिजाइन दे दें और उसको हम करें। मतलब प्रैक्टिकल मिलेंगे, प्रैक्टिकल करने पे। जी आप हाँ, मुझे इधर टूल यूज करना आपको आना चाहिए। मे बी पाकिस्तानी मार्केट आप ये आए थे कल खालिद, तो ये कह रहे थे कि मे बी इवन FPGA बेस्ड सॉल्यूशंस भी ना पाकिस्तान मार्केट के लिए इतने फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग कर के अपने कोड वेरिफिकेशन के लिए देखते हैं कि डिजाइन के लिए आपको लेट्स से अगर आपने चंद हजार या चंद टेंस ऑफ थाउजेंड्स अगर आपने कंपोनेंट्स बनाने हैं तो दिस इज नॉट फीजिबल एट ऑल। यू हैव टू हैव एटलीस्ट मिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो तब फीजिबल है। लेकिन नेवरदलेस आई थिंक आपको एक स्किल आनी चाहिए कि प्रोबेबली पाकिस्तान में या चाइना की वजह से डिजाइनर किसी बड़ी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते। डेली फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली हो सकती है कि आप अगर बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, आप जो कार डिजाइन वाले हैं अपने लिए बनाते हैं, कार कंपनी से बनाते हैं। अच्छा, नाउ वी कैन प्लॉट V of V out. लो एनर्जी इलेक्ट्रिक कार तो IoT की इलेक्ट्रिक वायरलेस लाइट। ठीक है, सो ये आपके पास इसका आ गया। अगर मैं यहाँ पे ही let me close it and I plot V of V in as well, so आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी और यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हैं कि कहाँ पे इसका मिड पॉइंट कहाँ पे है। अच्छा सर, ये स्विचिंग लिए यूज होगा ना, मतलब कि जो हमारी रेशियो है उससे ऊपर ऑन होगा और उसके नीचे। अब इसमें मैंने दिस वोल्टेज इज रफली, ठीक है, 0.85 से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ये आपको दिखा भी रहा है उधर, ठीक है, 0.87 और 0.868, तो दिस इज द पॉइंट वेयर बोथ आर इक्वल। और इसमें हम देख सकते हैं कि अगर इफ आई मेक अब यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स इसकी विड्थ रखी है पी फैट की, सो इफ आई चेंज इट तो इट वुड चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस और the transfer curve would be skewed then to either side. For example, अगर मैं let's see कि what should happen, let's think in our minds. अगर मैं दोनों को equal size बनाऊं तो the resistance of PMOS will in respect of the NMOS, and so should it go to the left or ये लैग करेगा। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका करंट ज़्यादा आएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो करंट नहीं, करंट कम होना चाहिए, so it will have less power then, so ये probably NFET की तरफ मूव करेगा। फिर पावर अफेक्टेड पावर कम होगी, बाकी डिसिपेट कर देगा रेजिस्टर के। नहीं, लेकिन अगर सेम वोल्टेज है, इनपुट अगर मिड पॉइंट पे है, so the NFET will draw more current, so it would have सर सीरीज में तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट तो नहीं होता। नहीं, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी उसकी, फिर करंट ड्रॉप नहीं, वोल्टेज जो है ना लेट्स से सेम है, तो सेम वोल्टेज के लिए करंट सेम होगा। इसका मतलब है कि उसकी वोल्टेज उसकी कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी एग्जैक्टली। हाँ जी, तो वोल्टेज क्योंकि करंट सेम है तो वोल्टेज इसकी बढ़ जाएगी। ओवरऑल पावर
नहीं, what should happen to the voltage transfer curve? So should it go to the right or left? हम देख लेते हैं। नहीं, देख तो लेते हैं लेकिन since the resistance of voltage drop across since we have reduced the width of P FET, it will increase the resistance. सही कहना कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, एन के क्रॉस कम हो जाएगा. सो फॉर द सेम वोल्टेज सर एनमॉस की क्रॉस कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो इट वुड मूव टू द राइट. आई गेस सो. लेट्स सी, आप क्या कहते हैं? सर अगर टीमॉस के क्रॉस ज्यादा हो जाए, अगर पुराना कर्व वोल्टेज चेंज किए फिर पुराना कर्व दिखाएं फिर उस पे ये हमने देखा ना, ये 0.87 पे तकरीबन मिड पॉइंट आ रहा है. सो द पॉइंट इज कि इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ PMOS by decreasing its width, so then I think at the same voltage it will have more drop. So it will, ये पॉइंट जो है ना आपके लेफ्ट पे होगा, ठीक है, पॉइंट लेफ्ट, ये वाला मिड पॉइंट पे आपकी वोल्टेज ऊपर आ रही होगी. तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट लाने के लिए यू हैव टू अप्लाई मोर वोल्टेज, तो इट शुड शिफ्ट टू द राइट. लेट्स सी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिड पॉइंट वोल्टेज की अगर मैं 0.87 अप्लाई करता हूँ तो देयर बी मोर वोल्टेज अक्रॉस P FET. ठीक है, ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पी FET की वोल्टेज तो ये कि एनमॉस की क्रॉस कम हो जाएगी. एग्जैक्टली. तो इसका मतलब है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? इट विल बी लार्जर फॉर द सेम इनपुट वोल्टेज. Vout अब इसके क्रॉस ले रहे हैं ना, NMOS के क्रॉस कम हो जाएगी. कम हो जाएगी. इट मींस कि इट शुड मूव टू द लेफ्ट. सर देखिए जी लाइट बात चली. एक सेकंड यार, लेट मी ये अगर सेव करना है, अच्छा वो आपके पास करना है. So ये है ना, ठीक है. हाँ सर, मैक पे फाइंड करके बाकी चीजें नहीं. अच्छा, ये पहला केस है जिसमें आपके पास 0.87 पे ये इधर था, ठीक है. अब अगर आपने उसकी विड्थ कम की है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. इसका मतलब है कि द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस फॉर द सेम इनपुट वोल्टेज, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस P FET शुड बी मोर, ठीक है. और V out क्या है बेसिकली, वो इट इज द डिफरेंस ऑफ द VDD माइनस द ड्रॉप अक्रॉस. तो इसका मतलब है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगी. तो इसका मतलब है कि द कर्व शुड एक्चुअली टू द लेफ्ट, ठीक है. ये आपकी वोल्टेज अब ये आ रही है इसी इनपुट के लिए. पहले इतनी आ रही थी पहले कर्व में, और दूसरे केस में आपके पास ये लेफ्ट होना चाहिए. लेट्स सी. अब यही एडवांटेज है जो हमने पहले लेक्चर्स में चीज़ें पढ़ी हैं. अगर ये हम चीज़ नहीं अंडरस्टैंड कर सकते तो फिर हमने वेस्ट किया है सारा काम. अच्छा, लेट्स सी. विड्थ शुड बी लेट्स से 1. awesome. Exit. अभी आ रहा है? एक्सकीम, ठीक है. UAE में एक लैब हुआ करती थी, हाइब्रिड लैब. तो वो इसी तरह बने बनाए सबस्ट्रेट्स होते थे, कंट्रोल लैब थी. अच्छा. उसके ऊपर फिर ये रेजिस्टिव इंक्स थी, उनसे डॉपिंग करते थे. और वो नहीं होती स्क्रीन प्रिंटिंग कर पहले कंप्यूटर में डिजाइन करते थे. वो पुराने कंप्यूटर डॉस बेस्ड थे, PCAD वगैरह की तरह, इसी तरह के थे, एक्शन लेटर की तरह के थे.
उसकी फिर फिल्म बनाते थे, एचिंग करते थे, और उसी के ऊपर कैपेसिटर भी बन गया, रजिस्टर भी बन गए, डायोड्स भी बनाए। तो ये बेसिकली चिप फैब्रिकेशन थी। ट्रांजिस्टर ये खुद अपने टेलीफोन के लिए बनाया करते थे, जो जर्मन फोन सीमेंस के बनते थे, बाद में चाइनीज आ गए थे। कैपेसिटर नॉर्मली एक केसिंग में एक होता है, ये एक केसिंग में 8 बनाने की कैपेसिटी थी टीआईपी के पास। तो आज देख लें उसका हाल, दुनिया से बहुत आगे है। हमारे लैब मैंने खुद देखी थी ये सारी चिप मैन्युफैक्चरिंग। ये एक छोटा सा सेल मॉड्यूल बनाते थे, जैसे आजकल आते हैं ना रेडियो बोर्ड होगा तो एक छोटा सा सेल लगा है, उसी में सारा रेडियो की पूरी चिप उसी में एजेक बना हुआ है। तो ये एजेक अपने लिए खुद बनाया करते हैं। पहले तो उन्होंने आई थिंक सीमेंस को सेल किए शेयर्स काफी 70%। अब तो ये सारी शॉप्स खाली पड़ी हैं, डस्ट के अलावा कुछ नहीं है अभी। बल्कि एनआरटीसी ने एक्वायर कर लिया, नाम ने गिफ्ट कर दिया इनको। बाकी जगह ही है कहाँ पे? अब तो एनआरटीसी खाली है सर। जब केआरएल ने ली थी ना, केआरएल सारा कुछ उठा के ले गया था, कुछ नहीं छोड़ा, खाली शॉप्स थी। ये मैकेनिकल की मशीन की जो फ्लो तो मशीनें बहुत पावरफुल थी, जो हर चीज में वो हर चीज बना सकते थे। अच्छा, मतलब जो मर्जी चाहिए। वाटर जेट कट जो जर्मनी में होता था, तो यहाँ पाकिस्तान में इधर था हमारे पास। वाटर जेट का नाम ही कोई वाटर जेट कटिंग वायर कटर्स लोगों के पास होते, इनके पास था। कॉपर वायर और उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाने की कैपेसिटी पाकिस्तान में सिर्फ टीएपी के पास थी। तो अभी टेलीफोन सेट्स कौन बनाता है? चाइना से बहुत करवाते हैं, तो कोई भी बनाता है नहीं। ये तो चाइना फैक्ट्री में कुछ भी नहीं है, 1 रुपए का कंपोनेंट या मशीन नहीं गई, खत्म, खाली हो गई, जमीन रह गई है या बिल्डिंग रह गई है। फिर मैं कहती हूँ होटल बना लेते नहीं, ये लीज अच्छा अभी लीज हुआ है ना, लोगों ने एक एरिया डिफाइन किया गया कि ये एरिया आप ले लें, आप इसमें पक्की बिल्डिंग मार्की बना लें, ढाबा शबा या कोई पार्किंग बना लें। इस तरह उन्होंने लीज पे दी है। 30,000 एक कनाल का किराया या इस तरह। तो जो ही लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ है, बाद में ये एनआरटीसी के लिए प्रोसेस शुरू हो गया। तो अगर होटल बने तो कितने रूम थे? एक ही होटल में चले। हाँ, हाउसिंग बन जाए। ये बहुत टाइम यूनिवर्सिटी बना दी। हम सीरियस में उसको बन गई। लेकिन ये 89 तो मतलब कुछ ना कुछ कर दी। Is there an error or? उन्होंने ये प्लानिंग से की समान है। नहीं तो किया ना, केआरएल की बात है, वो इन्होंने एक पब्लिक के लिए सेटअप स्मार्ट पीसी। अच्छा जी, स्मार्ट पीसी बेसिकली पीसीबी में ये वहाँ गई है केआरएल आप लोग। ठीक है, now have a look, test our understanding. So it is now 0.84. नहीं, 0.87 से 0.84 होगी। पीछे आया ना, पीछे हुए एग्जैक्टली। ये बल्कि आप प्रोबेबली इधर मल्टीपल दो आप कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं वो, लेकिन अच्छे जो टूल्स हैं ना, स्पाइस गाँव में मसला आ रहा था, गाँव भी में भी नहीं, लेकिन उसके लिए आपको 2 सिमुलेशन रन करनी पड़ेगी। वन वुड बी फॉर विड्थ ऑफ 1, जो कि आप डॉट स्टेप स्वीप से आम टूल्स में कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने फाइल सेव की है तो 2 फाइल सेव करके हाँ, इस तरह भी 884 है। हमने देखना क्या है कि जहाँ पे आपके पास इनपुट और आउटपुट बराबर हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। लेट्स सी इफ आई जूम इट फर्दर। ठीक है, 0.84 के करीब है, सही। पहले 0.87 थी। अच्छा, थर्डली अभी इन्होंने बंद नहीं की तो हम चले।
तीसरी सिमुलेशन हम रन कर सकते हैं ट्रांसिएंट सिमुलेशन फॉर द सेम सर्किट कि वी अप्लाई अ पल्स एट द इनपुट एंड सी के हाउ द आउटपुट रिस्पॉन्ड्स, और उसमें हम प्रोपेगेशन डिले, राइज टाइम, फॉल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. If I open transient hearing, यहाँ पे again I save V in, V out, and I've saved currents too, which is not needed. Yeah, maybe needed. So then I'm using a dot Meyer command to compute the propagation delay. So इसमें क्या है dot Meyer? I'm using the Meyer command for the transient simulation. So TRAN signifies this. Then I need to give the name of the variable, which is TPHL, T propagation high to low. और उसमें it would start the time with this command trigger. So trigger के लिए पहली चीज कौन सी voltage या कौन सा current आप देखना चाह रहे हैं. So I'm looking at the voltage Vn. Its value should be half of the supply voltage, 1.8 का half 0.9 है. And then it would check it during first rise. ठीक है, it could rise more than once. So rise equal to 1 का मतलब क्या है कि it is rising for the first time. ठीक है. Then there's a stop. Ending कौन सा point होगा जहाँ पे आप stop करेंगे calculation time की, that's the target. And you look at the value of V out when it becomes 0.9 and during a first fall. ठीक है, first rise होगा इनपुट का तो उस टाइम पे first fall कितनी देर बाद हो रहा है और 0.9 पे इसको स्टोर कर देगा. So इसमें मैं चार अच्छा सेकेंडली लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर तो हमारे पास ये पल्स रन नहीं हो रहा था. ठीक है, उसकी रीज़न ये थी कि आई वॉज नॉट पुटिंग दीज. एक काम तो ये है कि मैं इसको ऑल के बजाय अगर वैल्यू कर दूं तो आई शुड डू इट इनसाइड द डबल कोट्स. ये चीज़ मिसिंग थी. ठीक है, या लेट मी ट्राई बिकॉज दो वैल्यूज हैं इसकी, एक DC 1.8 है और दूसरी आपकी पल्स है. ठीक है, ये ना भी दें तो ये वैल्यूज लेता है स्ट्रिंग में नहीं, वो तब थी जब आपके पास ऑल जब आप एडिट कर रहे होते हैं. इफ यू जस्ट एडिटिंग द वैल्यू तो आई थिंक इट शुड बी वर्किंग फाइन. लेट्स सी, एक ये करते हैं और ये मैंने साथ करंट्स भी कर लिए हैं सेव एनफेट और पीफेट के. या हाँ जी, प्लॉट हम बाद में करेंगे. अभी हम एक मेजरमेंट कर रहे हैं टी प्रोपगेशन की, हाई टू लो की. सिमिलरली यू कैन डू अ टी प्रोपगेशन लो टू हाई. और मैं ये सोच रहा हूँ कि पावर ना इसकी हम लेट्स से समहाउ कंप्यूट कर लें. सो आई थिंक वो सेव आई ऑफ let's say instead of saving these currents को मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं dot save I of V2 to see कि एनर्जी कंजम्पशन इसकी क्या है. ठीक है, I'll take the product of VDD with this. I2 sir किससे आ रहा हो? V2 is the I2 नहीं, I of V2. V2 is the voltage source. तो इस कमांड के थ्रू आप इस वोल्टेज सोर्स का जो नेम है, ठीक है, उसका करंट फाइंड कर सकते हैं. लेट्स सी कि क्या कहता है. नेट लिस्ट एंड देन आई सिमुलेट. आई होप इट एक्सिक्यूट्स. एक तो ये कैलकुलेट आपको करके दे देगा TPHL और सेकेंडली आपको ट्रांजिएंट रिस्पांस देगा और उसमें जो जो वेरिएबल्स आपने सेव किए उनको आप प्लॉट फिर कर सकते हैं. अगर आप सेव नहीं करेंगे तो फिर आप प्लॉट नहीं कर सकेंगे. लेट्स से वी विल ट्राई टू प्लॉट द करंट ऑफ V1 एंड सी कि क्या आता है. अच्छा, ट्रांजिएंट सिमुलेशन एक तो आपकी AC सिमुलेशन है ना, जिसमें आप इनपुट सोर्स को साइनसॉइडल अज्यूम करके फ्रीक्वेंसी स्वीप करते हैं. फिर आप टाइम डोमेन सिमुलेशन से फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वो
वो कैसे करना है? इन द मीनवाइल सिमुलेशन रन हो रही है, सो कंट्रोल F डॉट 4 मैनुअल आपने भी सेट किया हुआ है? हाँ जी ये है आपका पड़ा हुआ है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो। क्या चीज़? सर मैनुअल कर लेंगे। ये डाउनलोड, ये नेट पे पड़ा है। अच्छा, ये जो डॉट 4 कमांड है ना, ये टाइम डोमेन प्लॉट से फ्रीक्वेंसी यानी फोरियर स्पेक्ट्रम आपको दिखाती है कि आपने एक फ्रीक्वेंसी के लिए देखा है और देखते हैं कि उसके अगर हार्मोनिक्स कैसे हैं, ठीक है, कितना क्लीन सिग्नल है। तो वी कुड ट्राई दिस एज वेल कि फोरियर 100K, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स कम है तो मे बी इतना अच्छा फोरियर ना आए, लेकिन वी कैन ट्राई, ठीक है। डॉट 4 100K एंड वी ऑफ वी आउट करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। इस पे मैं कोई असाइनमेंट दे दूं, टास्क दे दूं, या आप लोग खुद कर लेंगे? ये इन टूल्स के को यूज करें, एटलीस्ट एक्स स्कीम को। तो ज़ाहिर है कि असाइनमेंट के भी नंबर देते हैं, तो मसला नहीं, रिकॉर्ड के लिए होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो हम स्क्रीनशॉट्स लगाएंगे फिर जो आप नहीं, आप प्रॉब्ली कोई रिपोर्ट लिख के देंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट होने चाहिए, लेकिन थोड़ा हाँ रीडेबल हो। और चलो ये आप वैसे करें, ठीक है। असाइनमेंट में थोड़ी सी ना जो हमने बफर डिजाइन पढ़ा उस पर कुछ दे दूंगा, छोटी सी ऑप्टिमल लेट्स से कि डिले के लिए या एनर्जी और उसके कॉम्प्रोमाइज के लिए आप क्या करते हैं। तो जैसे कि आपने बताया था कि हम लोग अगर स्टेजेस ज्यादा करते तो क्या होगा? अब मैं आपको कोई सेट ऑफ वो दे दूंगा, कंस्ट्रेंट्स दे दूंगा कि इसके अंदर आपने डिजाइन करना है। मे बी यू वुड प्ले विद द विड्थ एंड सी के। अच्छा, ये आपका देखिए इसने टी प्रोपगेशन फाइंड कर लिया है। ये दिस इज द वैल्यू, ठीक है। इट इज 0.188 पिको या 18.8 पिको। पॉइंट में करें तो पिको कर लें, माइनस 11 है तो डिवाइडेड बाय एंड टाइम्स 18.8। 18 पिको है, 18.8 नहीं है, नेगेटिव में आपने वैल्यू 12 कर दिया, 11 18 है जी। तो आपने फिर 1 की तरफ नहीं, आई विल डिवाइड हियर तो ये -12 हो जाएगा और इधर फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, 18.8 होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू इसको 12 करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, 18 हो जाएगा। 18.8। सो देन आई कैन सी के वेव्स से क्या आता है, ये गेन नहीं दे रहा। So I have to write first of all raw file and then it would read. I come here, write CMOS underscore inverter underscore transient dot raw. अब मैं waves को रन करता हूँ तो वो उसको पिक कर लेना चाहिए। ये अब देखिए इसने I of V2 प्लॉट किया है, ठीक है। ये दो दिखा रहा है। अच्छा, ये दोनों क्यों दो दिखा रहा है? Let's see. First of all, I see Vn. इसको सिलेक्ट किया पहले, Vn को प्लॉट किया और देन ये मैं एक और पैनल ऐड करके V आउट को भी प्लॉट कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये वैसे इतना अच्छा नहीं लग रहा। Input is going down, so output is going up. ठीक, हाँ वो बेहतर थी I think. So I could plot V of V in, V of V. So here you could make it bigger. Let's see. Let me zoom in.
वो तो है ये इन्वर्ट क्यों हो गया इन्वर्टर है इन्वर्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए ना आप, क्योंकि वो यस कर देगा ठीक है, so when V in goes down, so V output goes up. इसमें they are properly sized, so the propagation delays should be same. दोनों का same Should be same. ठीक है, maybe we could design this with a smaller width. ये जो width of 1 or 2 है, ये minimum width नहीं है. ठीक है, minimum width is I think 0.45 micro. वो आपको उधर से इसको इतना कम कर देंगे उसको उतना increase कर देंगे एग्जैक्टली सो इसको आप मिनिमम करेंगे, सो ये मिनिमम साइज NMOS नहीं है. ठीक है, so you could have it smaller. Maybe let me try to run the command again and dot Meyer, dot नहीं होगा, Meyer tran tp and trigger क्या हो जाएगा अभी जी जी V of V in value equals to 0.9 and fall equals to 1. ठीक है, it is low to high, तो output would be going from 0 to 1, rise कर रही होगी. And target rise time नहीं है rise cycle V off out, एक second, and value is equal to 0.9 again and rise equal to 1. इसी ऑर्डर में हो सकते हैं fall और rise नहीं, एक सेकंड में सी के इधर इसमें आपके पास इनपुट पर क्या कर रही है, ब्लू वाली है ना इनपुट, सो इनपुट इज गोइंग अप, बस सही है, ये आपको पहले वाला ही दे देगा. यहाँ पे मैंने क्या किया कि आई एम trying to find the propagation delay when output goes from low to high. So it means कि input would go from high to low and output would go from low to high. Therefore मैंने V out के लिए rise को 1 किया और V in के लिए fall को 1 किया. So if I run it, लेकिन rise को 0 नहीं करना था हाँ जी, fall को 1 और rise को 0 नहीं, ये ऐसे है कि ये अच्छा इसके on off फंक्शन है नहीं वो नहीं है, ये ऐसे है कि if I could write fall equal to 2 as well, अच्छा fall equal to 3 as well, कि पहला rise है कि second rise है, third rise है. अच्छा ये number of right Exactly. So in this case it is 23.5, which is fairly close. लेकिन of course क्योंकि जो आपकी mobility है उसका फर्क exactly 2 times. सॉरी फिर rise 2 होगा ना, आपने एक fall पहले इनपुट दी वो चेक की तो V out फिर उसके बाद आएगी नेक्स्ट राइज पे. अब आप दोनों सेम राइज फॉल पे चेक कर रहे हैं. देखिए ये जो आपका है ना, let me open this. So ये low to high to low थी ना, input is going from high to low low and output is going from low to high. So, उसी टाइम पे जिस टाइम पे इनपुट जाएगी, अगर पहला फॉल है इनपुट का तो आउटपुट का पहला राइज आएगा. फॉर जब तक नीचे दूसरी परत आएगी लो टू हाई, तो फिर ये जो या आप दोनों को 2 कर दें या दोनों को 3 कर दें, ठीक है, मतलब ओके सेम टाइप पे होगा. एग्जैक्टली उस टाइम पे हो रहा हो. अच्छा फोरियर रन करके देखें इसका. फोरियर वुड नॉट बी अ गुड, सो डॉट 4 डॉट तो नहीं आना चाहिए, 4 100k and V of out. Let's see, 4 no such command or available in ngSpice. डॉट फोर डाल नहीं, मैं हमें ये कुछ कमांड्स नहीं रन होती, ये आदमी डॉट 4 नहीं रन हो रही, अनफॉर्चुनेट है. 18 है.
100K क्या है? Fourier analysis as a part of the transition frequency is the fundamental frequency and 100K कहती है. OV1 is the desired vector to be analyzed. Fourier analysis performed over the interval t stop period. T stop is the final time and period is one period of the fundamental frequency. The DC component and the first 9 harmonics are determined. For maximum accuracy T max period over. ये इसको जरा देखना पड़ेगा. ये असल में ये एक और कमांड है जिसके थ्रू आप एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेटली नहीं चल रही जो पैरामीटर है. ठीक है, सो लेट्स से इफ आई वांट टू कंप्यूट द पावर, ठीक है, सो आई वुड टेक द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक लेट कमांड है उसके थ्रू कर सकता हूँ. सो आई कुड इफ आई वांट टू कंप्यूट द पावर डिलीवर्ड बाय द VDD, so I would write let P, let's say P is the variable, equal to minus I of V2. ठीक है, क्योंकि I जो है ना उसकी डिफॉल्ट डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन वो पॉजिटिव टर्म में है. ठीक है, so actually we want to find the current जो कि डिलीवर हो रहा है. ठीक है, तो पॉजिटिव current which is supplied to the circuit, that be minus I2. ठीक है, I2 is the current into the positive terminal of the source. So I of V2 with a negative sign and times V2. ठीक है, ये 1.8 डायरेक्टली लिखते हैं. तो ये एक्चुअली राइट हैंड साइड इक्वल टू इनवैलिड. लेट्स सी कि मैं इसको पॉजिटिव करके देखता हूँ. As is invalid, ये क्यों? Fixed value का variable इसको करना चाहिए यार. So V of V2 कर लूं? नहीं, V2 no such vector. अच्छा, ये हमें नोड नेम देना है यहाँ पे. सोर्स की मैं देख लेता हूँ नेटलिस्ट. सो वी हैव टू सी के V2 कहाँ पे कनेक्टेड है. V2 इज कनेक्टेड बिटवीन नेट 1 एंड ग्राउंड. ठीक है, सो ये मैं डायरेक्टली 1.8 भी लिख सकता था. ठीक है, 1.8. So now it has computed a new vector P, which is, हाँ जी, अब मैं वैसे नेगेटिव भी कर सकता हूँ, माइनस. Now I could write WR data P, फाइल नेम पहले आएगा. ठीक है, power dot text and P. अच्छा, इस तरीके से सारा ओवरराइट अपेंड नहीं करेगा, नई पूरी फाइल रीराइट कर लेगा. ये देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता. अपेंड करने के लिए मैं वो लेस देन और असाइन कुछ. You could make, मतलब अगर आपने मल्टीपल करने हैं तो you could write multiple variables ना. यहाँ पे मैं अगर P के अलावा V ऑफ V in भी देना चाहूँ और V ऑफ V आउट भी देना चाहूँ, ठीक है, तो ये सारा जो है ना डाटा, if I एक्सप्लोरर ओपन है कि नहीं है. ठीक है, इसमें क्या है, पावर, रिफ्रेश कर txt, so I could open it. Now you see, ये probably, इसने, I think 1 2 3 4 5. Let's delete it.
अब मैं इसको दोबारा अगर रन करूं तो P सी में भी आप इसको आई थिंक कन्वर्ट कर सकते हैं। इधर WR डेटा की अगर आप देखेंगे ना तो वो ये कंपैटिबल होगा, ऊपर के इसकी दूसरा एक्सटेंशन वो पेंड करता है जी, है नहीं नहीं पेंड करता, ये पता नहीं क्या चक्कर है। सीबीएस वाला है कि वो पाइथन में मैटप्लॉटलिब से करना हो तो फिर लोड हो जाएगा। ये पता नहीं क्या क्या दे रहा है। पर ये इतनी वैल्यू था कि कुछ समझ नहीं आया। नहीं ये पावर अगर मैं एंड पे जाऊं 40 नैनो, फिर आप देखिए 4000 से पहले कॉलम वो तो ठीक है, लेकिन ये ठीक अच्छा इससे टाइम सब के लिए दिया हुआ है, ये टाइम है और ये पावर है, ये टाइम है ये वोल्टेज है, ये टाइम है और ये दूसरी वोल्टेज, किस इंसिडेंट पे वो एक्स और वाई दोनों दे रहा है। तो नाउ इफ यू वांट टू कंप्यूट द पावर, तो पावर आप फिर एवरेज ले सकते हैं, ठीक है। यू कंप्यूट दी यानी एवरेजिंग या इंटीग्रेशन अगर आपने करनी है तो आप फिर मैटलैब में कर लेंगे। ये काम सारे फिर अल्टीस्पाइस में शायद इजीली हो सकते हैं कि आप उसमें एक क्लिक करते हैं तो आपको एवरेज या आरएमएस निकाल के देगा। बहुत बेताशा ऑप्शन है सर, लेकिन है वो भी पुराना ही है, इतना लेटेस्ट नहीं है। एक काम किया जा सकता है कि इसकी जो रॉ फाइल है ये हम वहां पे रीड करें एल्टीस्पाइस में। लेट मी सी nmos हाँ पीस फाइल जो है वो अच्छी है। अल्टीस्पाइस में तो वो तो पुराने जमाने का ही वो, लेकिन पीस फाइल है वो तो बिल्कुल लेटेस्ट आ रहा है। तो ये भी पुराने जमाने ये अल्टीस्पाइस आपको ओपन आई डोंट नो, देखिए सर पुराने जमाने का ही है। ऐसे ना लगे आपने जंक्शन कैसे कि जी वाई से लेने हम बहुत प्यार इसने टाइट नहीं किया। जमाना तो पुराना नहीं, लोग पुराने चला भी लेकिन स्कीमेटिक, हाँ ये वहाँ है कहाँ पे इंडिया वाला गाना बनेगी ये क्या एड ट्रेसेस, गुड। ये देखें वी इन वी आउट, यार ये कोई फॉर्मेट्स हमके लगता है आपस में नहीं मैच कर रहे, बड़ा इट्स डिफिकल्ट जी। इसमें बेहतर है कि आप यहाँ से फाइल सेव करें WR डेटा से, उसको फिर मैटलैब में या किसी भी टूल में। ये नहीं ओपन है, ये कुछ और ही दे रहा है। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे आगे, ठीक है। इन्वर्टर के बाद दूसरे गेट्स को देखेंगे, और बल्कि अभी एक और काम भी मैं चाह रहा होता, लेकिन सिमुलेशन बहुत देर लगाती है। तो हैंग हो गया यार, शुक्र से लाइट नहीं की। अच्छा इसमें अच्छा मैजिक का भी ना आप कोशिश करें कि एटलीस्ट एक इन्वर्टर बना के
स्कीमेटिक में, और उसको फिर मैजिक में भी रिप्रोड्यूस करें। उसकी वीडियो मौजूद है, मैं शेयर भी कर दूंगा अगेन। फॉर एग्जांपल मैंने आज ये ट्राई की है, तो उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो देन यू कुड आस्क के ये लेयर्स जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, अगर लेयर्स क्लियर नहीं है तो लेट्स से कि ये अब आपकी पी डिफ्यूजन है जो आपकी ब्राउन है, फिर आपके पास ये जो रेड है दिस इज पॉली, और यहाँ पे आपको ये जो डायगोनल लाइंस हैं ये आपका एनवेल है, और to create an n-well contact you have to have n substrate diffusion NST, ये जो आपकी लेयर है ये NST है, और ये चीज़ आई थिंक वो अपनी ट्यूटोरियल में करवाता है, लेकिन आप उसको एक दफ़ा फ्लो को फॉलो करें, और इफ़ यू डोंट फॉलो कि व्हाट लेयर्स व्हाट, तो देन वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन एटलीस्ट सिस्टम लेवल पे हम थोड़ा ना आगे जाते हैं ताकि थोड़े से और गेट्स लेके, और अगर हमने कोई लॉजिक फंक्शन लेट्स से बनाना है अगर, तो फिर हम गेट्स की एक दफ़ा सेल्स बना लेंगे, इन्वर्टर का है या एंड गेट है, नॉर गेट है, नॉट गेट है, तो उनको यूज़ करते हुए फिर लॉजिक फंक्शन जितना ऑप्टिमाइज आपका अपना डिज़ाइन होगा, ठीक है, उतना ही फिर आपके आगे सर्किट्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। ये जो जिनकी लाइब्रेरी है ये स्टैंडर्ड्स तो दे रहे हैं, बाउंड्रीज पैरामीटर्स बता रहे हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स सेल बने हुए भी तो होंगे ना जो हम पिक एंड प्लेस करेंगे। जी, फिर जो गेट्स है वो कैसे बनते हैं? गेट्स जो बनते हैं आर गेट होते हैं, ये नहीं से बनता है इन्वर्टर जिस तरह बना है, तो इस तरह आपके पास देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे आप नैंड गेट या नॉर गेट कैसे बनाएंगे, तो वो इन्हीं को कॉम्प्लीमेंट्री लॉजिक को यूज करते ही मेन इश्यूज जो अभी तक थे वो प्रॉब्ली इसी के थे ना। अच्छा, इसके ना मैजिक के ट्यूटोरियल्स भी मौजूद हैं, ठीक है, इधर ही opencircuitdesign.com पे ही if I मैजिक में आप चाहेंगे तो इधर यूजर गाइड में जब आप आएंगे तो आपको वेरियस ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, तो इसमें आप बेसिक पेंटिंग, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें, एडवांस पेंटिंग, हायरार्कीज, ये एटलीस्ट ट्यूटोरियल 2 और 3 अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कैसे यूज करना है। ये लिंक ये मौजूद है, मैं इधर टीम्स में शेयर कर देता हूँ। ये आप हमजा ये आप शेयर कर दें उधर व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं ठीक है मीटिंग चलो मैं खुद भी शेयर कर दूंगा, अभी मेरा लैप वो नहीं व्हाट्सएप नहीं ऑन। तो ये एटलीस्ट ना ट्यूटोरियल 2 और 3 आप कम से कम 2 किया हो, ठीक है, 3 भी हो तो बेहतर है। ये मैजिक है फिर की वीडियो में भी बताया मैंने, वीडियो में कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो की है, लेकिन वो कमांड्स को इतना डिटेल से नहीं बता रहा। यहाँ पे आपको समझ आएगी कि अगर आपने वायरिंग करनी है या क्विकर वे क्या है, ठीक है, लेट्स से अगर आपने कोई चीज़ कॉपी करनी है, मूव करनी है, ठीक है, इट्स अ वेरी फास्ट लेआउट टूल। आप इसमें अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे तो उसके बाद आप बहुत क्विकली डिजाइन कंपटीशन में पता है कितने सेकंड जी वो मैंने एग्जैक्टली देखा है मैजिक में क्विकेस्ट इन्वर्टर या इस तरह से। तो ये यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होता है सर, टाइमिंग का, पत्नी को जल्दी बनाएगा तो मैं यूनिवर्सिटी में होता है कंपटीशन, उसमें छोटे सर्किट होते हैं। अच्छा, एक तो मैं शेयरिंग बंद कर लूँ, और दूसरा स्टॉप रिकॉर्डिंग।